Hello everyone, welcome back. So in today's lecture, we are going to discuss about the potential energy of different systems. First of all, we have taken the system of okay. First of all, we have taken an spring mass system where we can see that in this diagram one spring is connected. One spring is connected with the with some mass m. This is the spring, and this is the mass block that we have connected with the spring. Okay, now suppose that if the spring constant we are taking as k is the spring constant. What is spring constant? It is a force per unit area, force per unit length of the spring. Means how much amount of force is required to push or pull the spring, or to compress or stretch the spring, sorry. Okay, so this is force constant or spring constant. Okay, so if we have connected a we have taken a spring mass system, then when we stretch this mass, suppose that we have applied a force F on the right side, then what will happen? This block of mass m from initially it was at position O, it will move to a new position A, small a, sorry, capital A. Okay, so that means the body has at a traveled a displacement of x or distance of x1. Okay, when we are applying an external force F on the mass m, then we can see that it has displaced from its original position, that is O, to a new position, that is A. Okay, so that means it has displaced a distance of x1. Now what will happen? Until unless we don't release this force, the body will continue to be in the same position. But what will happen into the spring? This spring has been stretched and its tendency is to compress. Its tendency has become to compress. Why? Because as the force is applied on the mass and spring, some work has been done. Some work has been done by the external force F. This work done is stored in the form of potential energy in the spring. This work done is stored in the form of potential energy in the spring, and when we release the force, this potential energy tries to come to its original position, or to come it tries to come to zero. So the mass will move backwards when we release the force. Okay, we will see it later. Okay, now suppose what we are saying, let a spring mass system with mass m, we have taken the mass, and the spring constant is k. It is attached from one side of a wall. This is a wall, we have taken this as a wall, and we have connected one end of the spring with the wall. O is the mean position. O is the mean position of the mass m. When an external force F is applied on the mass, it displaces from its original position to a distance of x. x distance तक ये displace करती है. तो होगा क्या? The work done in displacing the mass is stored in the form of a potential energy. Same thing that I have told now. So ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा, इस स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट बाई F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स. इसकी जो k की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, ये क्या होती है? ये हो जाएगी F अपॉन एक्स, से F होता है न्यूटन में और x होता है मीटर में. ये क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ k, या और यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर. ठीक है, नाउ न्यूटन पर मीटर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. सो फोर्स हमें पता चल गया. और अगर अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इफ वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, that means we have to continuously increase the external force. That means the force here is variable. The force is variable. So for variable forces, what we have to do?
we have to take a small displacement dx and then we have to integrate the whole distance। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस dx यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हम मान के चलेंगे कि इस स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स F है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस फोर्स से dx डिस्प्लेसमेंट तक के लिए किया गया वर्क डन विल बी F इंटू dx। ओके, इट विल बी F इंटू dx। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम dw की वैल्यू मान लेंगे, dw यानी कि स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स F इंटू dx। अब अगर हमें टोटल O पोजीशन से लेकर A पोजीशन तक के लिए हमें टोटल डिस्टेंस के लिए अगर हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट द फंक्शन एफ डी एक्स फ्रॉम जीरो से, यानी कि मीन पोजीशन जीरो थी, जीरो से लेकर x1 तक के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो सेम थिंग हैज बीन डन हियर, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x1 एफ डी एक्स। अब f की वैल्यू तो माइनस के एक्स थी तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। जब k तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल दिया और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर x1 तक की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में वर्क डन। हम कहते हैं कि सर ये वर्क डन जो है यही वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच किया हुआ था तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी उसकी वैल्यू हो जाएगी ये u इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि फोर्स का नेचर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्प्रिंग मास सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करो हमें इनके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना हो, हमें एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि सपोज करो टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यहाँ पे हमने लिया हुआ है x और ये है इसकी एनर्जी एक्सिस, एनर्जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम डायग्राम को वापस यहाँ पे देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। मीन पोजीशन O है, ठीक है, O से जब ये x1 डिस्टेंस राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब बचा गया इस पोजीशन पर, यानी कि पोजीशन A पर इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि सर इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी मैक्सिमम है, जितनी भी होगी लेकिन मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट ए पर बात करें तो टोटल एनर्जी जो है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही ये फोर्स को रिलीज कर दिया जाएगा तो इसकी डायरेक्शन जो है ये पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, पोजीशन O की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे ये पोजीशन O की तरफ आएगी वैसे वैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन जैसे ही पोजीशन O पर आएगी, यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पर टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। और फिर लेकिन ये जब काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसके अंदर कोई ना कोई स्पीड आ गई, तो होगा क्या, ये बैक डायरेक्शन में चलना फिर से और स्टार्ट कर देगी। तो अब क्या होगा, अब इसका हो जाएगा कंप्रेशन। मान लो कि अगर हम सारे रेजिस्टेंस, सारे जो फ्रिक्शन वगैरह हैं
उस फ्रिक्शन फोर्स को हम इग्नोर कर दें तो होगा क्या, उस कंडीशन में जितना x1 डिस्टेंस ये राइट साइड में गया था तो x1 ही डिस्टेंस तक ये लेफ्ट साइड में भी कंप्रेस होगा। तो जब ये फर्दर मोस्ट पॉइंट आ गया B, इस पॉइंट पर भी वापस से अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर यानी कि O पोजीशन पर मैक्सिमम थी, वो जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहा है पॉइंट B की तरफ आते जा रहा है, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती जा रही है बट इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम वापस से यहाँ पे ग्राफ में बनाते हैं। ये यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं एक वापस से एक छोटा सा मास बना दिया, ये पोजीशन बना दी हमने O, यहाँ से ये पोजीशन है इसकी A, और जब ये रिलीज होके वापस आएगा तो ये पोजीशन हमने बना दी B। दोनों की डिस्टेंस x1 है, ये x1 है और ये भी x1 है। ठीक है, अब देखो पोजीशन O पे हमने कहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी, A पर हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बट काइनेटिक जीरो है। जब ये रिटर्न होके यहाँ पर आएगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, और जब ये यहाँ से रिवर्स होके ये B पॉइंट तक आएगा तो उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक इस पॉइंट पर फिर से जीरो हो जाएगी। तो ये जो अगर मैं मान के चलूँ कि ये O पोजीशन मीन पोजीशन है, तो यानी कि यहाँ पे ये है इसका O पोजीशन। अब इसके O से B की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, और O से A की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो हमने मान लिया ये O है, यहाँ पर ये है इसकी मैक्सिमम एनर्जी, ये है इसकी मैक्सिमम एनर्जी का लेवल, E इज इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये है इसका मैक्सिमम लेवल। ठीक है, अब जैसे जैसे हम सपोज करो ये पॉइंट है x1 प्लस x1, ये पॉइंट है प्लस x1, तो जैसे जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं और इसको लेके आए x1 तक, वैसे वैसे इसकी एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो गई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई। तो पोटेंशियल का ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, ये हम मान लेते हैं ये है ओके। अब इसके पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, तो ये वाला जो ग्राफ है ये तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। क्लियर है, तो हम देख रहे हैं जैसे O से x1 की तरफ आ रहा है तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है जबकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया -x1 जो कि -x1 ये B पॉइंट है और ये पॉइंट A था। अब -x1 पर क्या हो रहा है, वापिस से सेम चीज, पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का कर्व, ये कर्व हम बना देंगे जीरो, सॉरी से जीरो की तरफ आ गया, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो गई मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम। ठीक है, और ये है इसका ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये कर्व हमें याद रखना है, ये कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी का कर्व नीचे से ऊपर जाता है मैक्सिमम होता है और फिर ऊपर से वापस से नीचे आके जीरो हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आउटर मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम रहता है, सेंटर पे आके जीरो हो जाता है, फिर आउटर मोस्ट पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को याद रखना है कि इनके बीच में ग्राफ जो प्लॉट किया तो हमने किस टाइप की वैल्यू मिली। ये कर्व एक कैसा कर्व रहेगा, हाइपरबोलिक कर्व रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कर्व टोटल एनर्जी का कर्व। अच्छा, एक चीज और देखना, ये यहाँ पे ये जो E की वैल्यू जो दिखाई है हमने, ये E जो है मैक्सिमम है और इसकी वैल्यू हमेशा K+P के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर अगर काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि दोनों का सम कैलकुलेट करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा ये मैक्सिमम के बराबर आएगी, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। चलिए, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। छोटा नहीं है, एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, लेट अस सी।
ए बॉब ऑफ मास इज सस्पेंडेड मास m, यहाँ पे सपोज करो कोई बॉब है जिसका मास m दिया हुआ है, इसको हटा दो, यहाँ पे हमने लिया बॉब ऑफ मास m। तो जब इसका मास है तो हम कहेंगे कि इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। इज सस्पेंडेड बाई ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल लेंथ की स्ट्रिंग है, इसके साथ सस्पेंडेड है। तो सीधी सी बात है, जब सस्पेंडेड है, वेट इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इसके अंदर एक टेंशन जनरेट होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही होगी। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, ये कह रहा है कि ये वी नॉट वेलोसिटी जो है, वी नॉट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट इसको दी गई है एट द लोएस्ट पॉइंट ए, ये लोएस्ट पॉइंट है इसका ए जहां पर इसकी वेलोसिटी दी गई है। सच दैट इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, ये कह रहा है कि इस तरीके से दी गई है कि इसको जब हम वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर यहां से लेकर सी तक अपनी ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करता है, सी तक अपनी ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करता है। ठीक है, इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, ये कह रहा है लेकिन जब ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट सी पर आ जाता है तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्लैक हो जाती है। तो जब स्लैक हो जाती है तो इसका मतलब वहां पर कोई टेंशन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जो टेंशन है, स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट यानी कि इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी एंड द रेशियोज ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बी एंड के सी, ये चीजें हमें निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे एट पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट ए पर क्या क्या चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि mg जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि टेंशन T जो है ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन दोनों का जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट की वजह से ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो T माइनस एम से मिलेगा, लेकिन इस T माइनस एम की वैल्यू जो होगी वो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल के बराबर होगी, है ना। यानी कि हम कहेंगे कि सर T माइनस एम इज प्रोवाइडिंग centripetal force and it is equal to the centrifugal force, so we can say T minus mg is equals to mv naught square divided by L। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर जब इसकी टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सर इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कर दीजिए। बट यहाँ पर पॉइंट ए पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। एट द लोएस्ट पॉइंट वी विल कंसीडर इट्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका क्या है? ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं पॉइंट सी पर। ये है पॉइंट सी, हाईएस्ट पॉइंट सी। ये देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट सी है। इस हाईएस्ट पॉइंट सी पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मैक्सिमम हो गई, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की कोई वैल्यू आ रही है क्या? और टेंशन की भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो अब कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पर देखें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले एनर्जी इक्वेशन प्लेस करेंगे। अगर लेट अस से वेलोसिटी एट सी इज वीसी जो है वो सी पॉइंट पर वेलोसिटी है। सो
टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और E इज इक्वल टू काइनेटिक कितनी है, हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब H देखो यहाँ पे कितना है, H कितना हो जाएगा, H के लिए रेफरेंस पॉइंट जो हम ले रहे हैं, हाइट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं पॉइंट ए, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके डायमीटर के बराबर है, यानी कि L प्लस L 2L। तो हम इसको कह देंगे सर ये तो 2L के बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे 2L, और सिंपली E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, इट सेज बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, सो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम जी एल। क्लियर है। फोर्स, इसके ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि टेंशन तो है नहीं, देयर इज नो टेंशन, सो एम जी माइनस टी तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल, और सिंपली यहाँ से वी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जी एल के बराबर आ गई, और वी कैन से वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल। ठीक है, ये जो वी सी की वैल्यू है इसको इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ वी सी इन इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा कि हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर था, तो इसको हम जी एल पुट कर देंगे, और प्लस 2mgl। m हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2gl, और 2 कैंसिल अगेन, सो वी विल राइट वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl, और वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gl। ठीक है, नाउ एट पॉइंट बी पे कैलकुलेट करते हैं। नाउ एट पॉइंट बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी सेम थिंग करेंगे, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि वी बी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी है, वेलोसिटी है, और प्लस एम जी इंटू एल, जो कि उसके एम जी इंटू एल क्या लिया हमने, ये सपोज करो हमने ये पॉइंट लिया था B, तो इस पॉइंट की ये जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हमने A लिया था, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो है L के बराबर, तो वो mgh यानी कि L जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट करी। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी है ये किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। सो सिंस E is equals to half of एम वी नॉट स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू देखो हमने लिखी है 5gl के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, m हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5/2gl इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर और प्लस एम जी एल, और सिंपली जब यहाँ से वी बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3gl, और सिंपली वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gl।
तो ये आ गई वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब हमें फाइंड आउट करना था काइनेटिक एनर्जी को, रेशियो, काइनेटिक एनर्जी के रेशियो को। सो के बी अपॉन के सी इज इक्वल टू, के बी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी सी स्क्वायर, और सिंपली वी बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3gl और वी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5, सॉरी सिंपली gl, वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, gl थी, तो हम इसको लिख देंगे gl। तो के बी अपॉन के सी की जो वैल्यू है वो 3:1 के बराबर है। तो यहाँ तक हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। इस चीज़ को वापस से अगर नहीं समझ में आया तो वापस से ढंग से समझ लेना रिवाइंड करके। कोई डाउट होगा तो आप शाम की क्लास में पूछ लेंगे। थैंक यू।